फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलो देखते हैं, देश छोड़कर आई शेख हसीना को भारत ने क्यों दी शरण। संसद में जयशंकर ने किया चौंकाने वाला खुलासा। अच्छा, अभी शरण तो मेरे ख्याल से नहीं दी, मेरे ख्याल से उनका मतलब है कि उनको आना है, मतलब जब वो वहां से भागी हैं तो वो इंडिया में आई हैं तो वो शरण देना ही माना जाएगा। और अभी रह भी रही हैं हमारे यहीं पे देश में ही। अब कहाँ इवेंचुअली वो डिसाइड करते हैं कि हमने रहना है, वो अब बाद में पता चलेगा। तो चलो देखते हैं कि क्या बोला जयशंकर ने सदन में, ताकि इससे हमें अब ये होगा फर्स्ट हैंड, इससे हमें पता चलेगा कि हो क्या रहा है। क्योंकि इतनी न्यूज़ अलग अलग और उस टाइप की आ रही हैं, अब देखते हैं यहाँ पे क्या वो बोलते हैं, क्योंकि ये एक्चुअल हमें पता चलेगा कि हमारा देश जो है वो क्या सोच रहा है और क्या इन्फॉर्मेशन, अगर कोई शेख हसीना के साथ जो बातचीत की अगर वो शेयर करेंगे तो और भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। स्टेटमेंट बाय मिनिस्टर श्री एस जयशंकर। Mr. Chairman, sir, I rise to apprise this august House of certain recent developments pertaining to Bangladesh. As honorable members are aware, India-Bangladesh relations have been exceptionally close for many decades over many governments. Concern about recent violence and instability there is shared across the political spectrum. Since the election in January 2024, there has been considerable tension, deep divides, and growing polarization in Bangladesh politics. This underlying foundation aggravated a student agitation that started in June this year. There was growing violence, including attacks on public buildings and infrastructure, as well as traffic and rail obstruction. The violence continued through the month of July. Throughout this period, we repeatedly counseled restraint and urged that the situation be diffused through dialogue. Similar urgings were made to various political forces with whom we were in touch. So, despite a Supreme Court judgment on 21 July, there was no let-up in the public agitation. Various decisions and actions taken thereafter only exacerbated the situation. The agitation at this stage coalesced around a one-point agenda, that is that the Prime Minister, Sheikh Hasina, should step down. On 4th August, events took a very serious turn. Attacks on the police, including police stations and government installations, intensified even as overall levels of violence greatly escalated. Properties of individuals associated with the regime were torched across the country. What was particularly worrying was that minorities, their businesses and temples also came under attack at multiple locations. The full extent of this is still not clear. Sir, on 5th August, demonstrators converged in Dhaka despite the curfew. Our understanding is that after a meeting with leaders of the security establishment, Prime Minister Sheikh Hasina apparently made the decision to resign. At very short notice, she requested approval to come. देखा, मैंने बोला था ना शॉर्ट नोटिस होगा। We simultaneously received a request for flight clearance from Bangladesh authorities. She arrived yesterday evening in Delhi. The situation in Bangladesh, sir, is still evolving. The Army Chief, General Waqar-uz-Zaman, addressed the nation on 5th August. He spoke about assuming responsibility and constituting an interim government. We are in close and continuous touch with the Indian community in Bangladesh through our diplomatic missions. There are an estimated 19,000 Indian nationals there, of which about 9,000 are students.
The bulk बांग्लादेश में of स्टूडेंट्स गए हुए हैं। have already returned to India in the month of July, the advice of the High Commission. In terms of our diplomatic presence, in addition to the High Commission in Dhaka, we have assistant High Commissions in Chittagong, Rajshahi, Khulna and Sylhet. It is our expectation that the host government will provide the required security protection for these establishments. We look forward to their normal functioning once the situation stabilizes. Chairman sir, we are also monitoring the situation with regard to the status of minorities. There are reports of initiatives by various groups and organizations to ensure their protection and well-being. We welcome that, but will naturally remain deeply concerned till law and order is visibly restored. Our border guarding forces have also been instructed to be exceptionally alert in view of this complex situation. In the last 24 hours, we have also been in regular touch with the authorities in Dhaka. This is the situation as of now. I seek the understanding and support of the House in regard to sensitive issues regarding an important neighbor on which there has always been strong national consensus. Thank you. Debate resumes. Shri Deepak Prakash. Shri Deepak Prakash. No. Shri Deepak, please. मारो। Nothing positive. Everyone has positive. Please don't exploit it. Please. Shri Deepak Prakash. गुड, आई लाइक इट। ऐसे इस विषय पर विदेश मंत्री जी और सर्वदलीय बैठक हो चुकी है। मैं इसलिए इस चेंज हो विषय गया? को उठा रहा हूँ क्योंकि विदेश मंत्री ने दोपहर को उसके ऊपर बयान देना है, तो हमारी जो चिंताएं हैं उनको भी उनकी अपने संज्ञान चिंताएं। में ले लेंगे जब वो बयान देंगे। तो मैं 2-3 बातें इनका ऐनक का आपके रखिए, समक्ष यहाँ रखना रखते हैं, चाहता ये हूँ। कहाँ लगा के रखे हैं? बांग्लादेश से अध्यक्ष जी भारत का एक विशेष रिश्ता रहा है। 1971 में है कौन ये? मैं बांग्लादेश पढ़ा ही की नहीं। संरचना में भारत ने एक विशेष मनीष भूमिका तिवारी। निभाई थी, जिससे जो दक्षिण एशिया का भौगोलिक कांग्रेस। मैप है वो 1947 के बाद एक बार फिर से बदला था। जो परिस्थितियां बांग्लादेश में आज की तारीख में उत्पन्न हैं वो बहुत ही संवेदनशील है और बहुत ही चिंताजनक है। जनवरी 2024 में शेख हसीना जी के नेतृत्व में अवामी लीग की चौथी बार सरकार बनी थी और लगभग 6 महीने के बाद ही एक ऐसी परिस्थिति वहाँ पे उत्पन्न हुई कि एक आंदोलन हुआ और उस आंदोलन के कारण सरकार को इस्तीफा देना पड़ा और शेख हसीना जी को वो मुल्क छोड़ना भी पड़ा। मैं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में ये बात लाना चाहता हूँ कि सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं है, पिछले 3-4 वर्ष में दक्षिण एशिया के कई ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता काबिज रही है। चाहे तो- म्यांमार हो, चाहे श्रीलंका हो, हाँ, तो भाई- चाहे मालदीव्स हो और पॉइंट पे आ पाकिस्तान भाई। में भी जो फौज का वर्चस्व है भाई, अब उसमें हम वो थोड़ी को कुछ कर सकते हैं, उनके सिविलियन देश की सरकार के प्रॉब्लम ऊपर है। बढ़ता जा रहा है। चीन का हस्तक्षेप भी वेस्टर्न इंडियन ओशन में पिछले कई वर्षों में बढ़ा है और इसलिए मैं सरकार से ये जानना चाहता हूँ क्योंकि भारत दक्षिण एशिया का सबसे प्रमुख मुल्क है और दक्षिण एशिया में अगर अस्थिरता होती है उसका सीधा सीधा असर भारत पे पड़ता है और सबसे ज्यादा प्रभाव भारत पे पड़ता है। तो मैं सरकार से ये जानना चाहूंगा जब विदेश मंत्री जवाब देंगे कि पिछले कुछ वर्षों में दक्षिण एशिया में राजनीतिक स्थिरता को बहाल रखने के लिए भारत सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं और अगर ये जो राजनीतिक अस्थिरता है ये इसी तरह फैलती रही तो इसके जो नकारात्मक प्रभाव है वो भारत के ऊपर क्या पड़ने वाले हैं, ये मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। यार एक वो जयशंकर को सुनने का मैंने कहा कि अच्छा बताया, सब बताया, सीरियस नोट पे बताया, फिर ये बंदा उठा, मुझे लगा कोई अच्छी बात या कुछ सीरियस वे से कुछ पूछेगा। भैया डेफिनेटली बहुत जगहों पे कंट्रीज में अस्थिरता आ रही है,
पर उसको इंडिया थोड़ी कोई कंट्रोल कर सकता है। इंडिया तो अपने आप अपनी कंट्री को ही देखेगा ना, अपनी स्थिरता का ध्यान रखेगा। वहां पे तो हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो उनकी कंट्री की प्रॉब्लम है। हमें मेक श्योर ये करना है कि हाउ हम वी आर सेफ एंड हम कैसे अपने आप को जो है इतना स्ट्रांग बनाएं कि भैया हमारा ऐसा केस ना हो जैसा बाकी देशों का हुआ है। अब जैसे लोग बोलते हैं कि भैया ये शायद फलाने ने किया, ठमकाने ने किया होगा, तो हमें इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि भैया कोई कंट्री इंटरनल, हमारे इंटरनल मैटर्स, हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स हमारे देश के अंदर इस टाइप की अस्थिरता पैदा ना कर सके। ये एक लर्निंग लेसन है हमारे लिए, इससे हमें ये सीखना चाहिए। पर जयशंकर जी जो है उन्होंने तो बताया भैया। और जैसे मैंने बोला था, कौन सी वीडियो थी, मेरे ख्याल से मेजर गौरव आर्या की जो हमने वीडियो की थी, जिसमें वो उनको लग रहा था कि भाई ये मेरे ख्याल से हमारे जो ये गवर्नमेंट है उसको पहले से ही पता था, बहुत पहले से पता था हमारी एजेंसीज को कि कुछ होने वाला है वहां पे, नहीं तो इतनी जल्दी उनको जो है शेख हसीना को कैसे लेके आ गए, ये सब कैसे हो। मैंने कहा था नहीं, ये इमरजेंसी में इमीडिएटली कॉल किया गया होगा, इमीडिएटली यहाँ पे उन्होंने उसके लिए पूरा अरेंजमेंट किया होगा कि कैसे वो आएंगे और कैसे लेके जाएंगे, वो प्लान किया होगा। वो ही जयशंकर ने क्लियर कर दिया। जयशंकर जी ने साफ साफ बात की है जिसके उनके पास फैक्ट्स हैं, कोई ऊपर का कुछ नहीं बोला, कुछ अपना ओपिनियन नहीं बताया। दैट इज हाउ इट शुड बी, दैट्स हाउ इट शुड बी। जब और कोई ये बताता है लोगों को इसमें मसाला नजर नहीं आता, ऐसे चीजें चलती नहीं है। वो न्यूज चैनल वाले और दूसरे जो चैनल्स बना के बैठे हुए हैं वो उसमें मसाले बताते हैं, ओपिनियन नहीं क्या बातें बोलते हैं। एक का मैंने सुना, तो नाम नहीं लूंगी किसका सुना, इशारा ही काफी है। तो उसमें क्या बोला गया, उसमें ये बताने की कोशिश की कि यूएसए जो था वो ताक में था। क्या मैंने बताया था ना, क्या डायलॉग बताया था मैंने, यूएसए जो है ताक में था कि जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, हाँ, शेख हसीना का कुछ हुआ तो उसने उसी टाइम यूएसए ने ये कर दिया। मैं इतना हंसी, मैंने कहा भैया बहुत ही अनप्रोफेशनल, बहुत अनप्रोफेशनल, बायस्ड और बिना किसी फैक्ट्स के लोग मसाला लगा के कर रहे हैं जिससे व्यूअरशिप बढ़े, जिससे लोगों को एंटरटेनमेंट है। बेसिकली जितने चल रहे हैं वो न्यूज़ नहीं बता रहे, वो एंटरटेनमेंट कर रहे हैं एज अपना ये जो काम को सीरियस लेके जो उनका काम है। अगर आप न्यूज चैनल वाले एंटरटेनमेंट चैनल्स वो उनको मिर्च मसाला या इधर से सुन लिया, इस चैनल ने ये किया था, इसकी व्यूज आ गए, अब इसी के वे पे हम भी बना के बोले ताकि हमें भी व्यूज आए। तो वो ये सब कर रहे हैं। और यूएसए के अंदर मैं ढूंढ के थक गई कि बांग्लादेश की कोई न्यूज आ जाए। यहाँ यूएसए में कोई मेजर न्यूज आई नहीं रही, वो कह रहा है बांग्लादेश, और मेन टीवी में तो आई नहीं रही। मैंने कहा चलो यूट्यूब में ढूंढ लेती हूँ कि यूएसए के कोई चैनल्स ने कुछ बात की हो, कुछ नहीं हो रहा। यूएसए के सारे न्यूज़पेपर्स में अगर आप इजराइल एशिया में जाएं तो और एशिया के सेक्शन में जाएं तो एशिया के सेक्शन में आपको एक आध आर्टिकल बहुत ही बैलेंस वाले बेस्ड ऑन फैक्ट्स। मगर जब आप YouTube में जाएं, इंडिया के YouTube में इतना मसाला और कोई बात ही नहीं, बिना फैक्ट के इतना जबरदस्त बोल रहे हैं, विच इज लाइक अनइमेजिनेबल। लोग भी बड़ा मजा कर रहे हैं एज एंटरटेनमेंट। तो वो जितनी भी चैनल्स हैं वो YouTube चैनल्स, वो न्यूज चैनल्स नहीं है, वो एंटरटेनमेंट चैनल्स बन गई हैं। यूएसए ने भैया वीजा रिवोक कर दिया है, मैंने ये सुना, राइट, सो कॉल्ड बड़े बड़े चैनलों से। मैंने कहा भैया देखूं यूएसए ने किया है, कहीं यूएसए में न्यूज हो, मुझे तो कहीं मिली नहीं। मैंने कहा पता नहीं भैया ये सच है कि नहीं। अब ये तो अगर कोई बोलता भी है भाई यूके ने भी रिजेक्ट कर दिया, तो पीछे को दिखाता नहीं है छोटी सी फुटेज की ये आदमी है, यूके का ऑफिशियल ये बोल रहा है, ये स्टेटमेंट आई है यूके की पार्लियामेंट से या यूके गवर्नमेंट से, ये बोल, ये नहीं, ये इतना जबरदस्त मसाला लग रहा है, विच इज अमेजिंग। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता कि अब क्या बिलीव करो क्या नहीं बिलीव करो, मेरा तो दिमाग घूम गया। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।